Hello students, welcome to the part 2 of the chapter Carbon and Compounds, which is a chapter of science of class 10th. In this chapter we have study about covalent compounds. पिछले वीडियो में हमने कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने पर। जब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ना रिसीव करता है, इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली in this chapter in this video we'll study about covalent compounds, those compounds which are formed when two or more non-metals share their electrons and form covalent bonds. For example, water, CO2, NH3, CH4. This we have studied about in the part 1 also. Then we are coming to properties of these covalent compounds. They have low melting and boiling points because less amount of energy is required to break their lattice, which is not very strong. Then they are poor conductors of electricity as they cannot form ions. Hence the electrical conductivity is also very poor. They are not soluble in water because ये ions नहीं बनाते, anions cations में dissociate नहीं हो सकते, तो ये polar solvents में dissolve भी नहीं हो सकते, but they are soluble in organic solvents like ether, chloroform, benzene, etc. Then we come to hydrocarbons. As the name suggests, hydrocarbon मतलब compounds, वो covalent compounds जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो. Specific types of covalent compounds which are made of carbon and hydrogen atoms specifically. In this chapter we will study about the types of hydrocarbons. They are basically of two types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. The basic difference इनमें क्या है? Type of bonds which are formed between carbon and carbon. First we come to saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons का एक और नाम है alkanes. Hydrocarbons containing only single bonds between carbon-carbon atom. मतलब कार्बन चेन में जितने भी कार्बन होंगे वो सभी एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा ही कनेक्टेड होंगे. जितने मर्जी कार्बन्स हों, दे आर फॉर्म्ड ओनली बाय द सिंगल कार्बन एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ जनरल फॉर्मूला विच इज CnH2n+2. n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उससे डबल +2 हाइड्रोजन के एटम्स उसमें होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मीथेन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इथेन द नेक्स्ट मेंबर इन द सेम सीरीज. देन प्रोपेन, ब्यूटेन, जिनके नॉमेनक्लेचर में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. तो अभी हम देखते हैं इथेन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है. इसका फॉर्मूला है C2H6. अब ये इस जनरल फार्मूला में सेट बैठता है जहाँ पे 2 कार्बन नंबर हैं, 2 + 2 and 4 + 2 comes to 6. Then carbon join with single bond and the tetravalency is satisfied by another 3 hydrogens on this carbon and another 3 hydrogens on this carbon. The total number of hydrogens become 6. Then coming to electron dot structure of ethane. कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ब्लू में मेंशन किया है. Similarly, this carbon has 4 valence electrons. 1 pair is shared between the both carbons. And the remaining 3 are shared with 3 hydrogens for this carbon and 3 hydrogens for this carbon. They all are single covalent bonds. Coming to this structure and this structure, this is the simple structure and this is the electron dot structure for ethane. These are very important from the examination point of view. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आते हैं एग्जाम में, तो ये सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं जो कार्बन ने बनाए. और इसी तरह से कार्बन की दोनों प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई हो गई, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन. देन वी कम टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड तो है ही, बस इसके अलावा कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है. डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं. हम 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरीज में फर्दर बांटेंगे. हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड between carbon and carbon atom in addition to single bonds. They are again classified into 2 types. First is alkenes. Alkenes are those
unsaturated hydrocarbons which contain at least one double bond. Remember, no triple bond is present in alkene. It contains only double bonds and single bonds, of course. They have general formula called CN and H2N. मतलब जितना भी कार्बन में कार्बन के एटम का नंबर होगा उससे डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सीरीज वी कम टू फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, इथीन. क्योंकि नाम में एल्कीन है तो इसके सफिक्स में इथीन लगेगा. C2H4, कार्बन का नंबर अगर 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आएँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमने एक डबल बॉन्ड बनाया. 2 कार्बन की वैलेंस एटम्स यहीं पे शेयर हो गए. बचे हुए 2 जो हैं वो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर. कमिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज़ 4. और कार्बन के क्योंकि 4 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए. 2 इन्होंने आपस में कार्बन में करे और 2 हाइड्रोजन इसने शेयर करे, 2 हाइड्रोजन इसने शेयर करे. कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथीन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे मेंशन किया, 2 पेयर्स इन्होंने आपस में शेयर कर लिए. ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड. और बची हुई 2 वैलेंसी जो हैं वो एक हाइड्रोजन के साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगी. इसी तरह इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया. तो C2H4 हमारा फॉर्मूला बना जो कि है इथीन का. नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि हैं एल्काइंस. अब इसमें डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एडिशन टू सिंगल बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड्स तो हो सकते हैं, अगर चेन लंबी है तो सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. दे हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. मतलब जितना भी कार्बन का नंबर है उससे हाइड्रोजन का नंबर दुगना, जिसमें से माइनस कर दें आप 2 इलेक्ट्रॉन. तो फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट मेंबर है इथाइन, C2, 2 2 4 -2 कम्स टू 2, C2H2. इसका स्ट्रक्चर बन गया. अब एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है तो हमने 2 कार्बन्स के बीच में, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन के बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया. 3 कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई. इसको बस अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है जो कि ये इस हाइड्रोजन के साथ और ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. देन कम टू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना है, 3 पेयर 2 कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला कार्बन. तो इस तरह से C2 और H2 इसका फॉर्मूला बन गया. This is the general properties of alkanes and alkynes. In this part of video we will study this. Next part of our video we'll come to the nomenclature of alkanes. So bye for now. Happy learning. Thank you.